Hello everyone, welcome to my channel and this is your Reena ma'am. Today we are going to start class 10th maths exercise 3.5. We have already done question number 1, 2 and 3 and today we are going to do question number 4. So if you want solution of all NCERT questions then please subscribe my channel if you are new in this channel. So let us start with question number 4. What is given here? Form the pair of linear equations in the following problems and find their solution if they exist. Right? So let us start with very first part of it. In the very first part, we have the part of monthly hostel charges is fixed and remaining depends on the number of days. तो यहाँ पे monthly charge किसी hostel के given है जिसमें कि एक fixed amount है और दूसरा जो अमाउंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो नंबर ऑफ डेज के ऊपर डिपेंड करता है. राइट. See here in question we have a fixed charge, so we will take this fixed charge as x rupees, right? And we have to pay the remaining depends on the number of days. तो कितने दिन उसने उस हॉस्टल में उस हॉस्टल का चार्ज कितने दिन के लिए आगे पे करना है मंथली चार्ज, तो वो कितने दिन वहाँ पे स्पेंड किए हैं इसके ऊपर डिपेंड है. तो रिमेनिंग जो चार्ज है वो दिन के ऊपर डिपेंड है, तो हम ले लेते हैं इसको कि ये है रुपीज़ वाई. राइट. एंड दे आर टॉकिंग अबाउट डेज, तो हम रुपीज़ वाई पर डे ले लेते हैं इसको. देन हाउ वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर, दिस क्वेश्चन वी विल राइट लेट द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड charge or the fixed charge in that monthly charges is rupees x and the remaining depends on the number of days, that is rupees y per day. Okay, then we will form the equation. So when a student take food for 20 days, अगर 20 दिन के लिए कोई फूड लेता है मेस से, एक दिन का मेस का चार्ज है रुपीज़ वाई और अगर 20 डेज के लिए फूड लेता है तो वो टोटल चार्ज हो जाता है हॉस्टल का 1000 रुपीज़. राइट. सो यानी कि हमें क्या करना है, व्हाट इज़ गिवन हियर, अ स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 डेज, शी पे 1000 रुपीज़. सो फॉर 20 days okay, amount paid by a student, amount paid is equal to, that is rupees 1000. So for 20 days we can say that fixed amount will be same, x तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 20 दिन के लिए मेस का चार्ज कितना हो जाएगा, 20 into y, that is 20y. So we can write this is our first equation. ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी कि x plus 20y is equal to 1000. नाउ सेकेंड के लिए ही सेइंग कि अगर वो 26 डे के लिए 26 डेज के लिए पे करता है तो उसको कितना चार्ज करना पड़ता है, 1180 रुपीज़ पे करना पड़ता है. ओके, सो वी कैन टेक हेयर फॉर 26 डेज. तो 26 डेज में क्या आ जाएगा, जो फिक्स अमाउंट है x वो तो ऐड होगा ही होगा, बट उसके साथ 26 डेज का मेस अमाउंट भी चार्ज किया जाएगा. सो फॉर 26 डेज मेस अमाउंट विल बी 26y एंड द टोटल अमाउंट शुड बी पेड by 1180 and this is our second equation. Now we will solve these equation by using elimination method because it is quite simple here. यहाँ पे बहुत easily हम elimination method लगा सकते हैं. Minus, this first will be cancelled out. Here we have to write minus and here we have to write minus. So we will get minus 6y is equal to minus 180. So from here we can get the value of y. ओके, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल हो गया और आपने बस यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है और फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है. इट्स क्वाइट सिंपल टू डू. सो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ y here. Yes, we have minus 6y is equal to minus 180 and then we can say that कि यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, minus 180 divided by minus 6. So here minus sign will be cancelled out by each other and 6 ones are 6 and 6 30s are. So we can say that y value of y will be 30, यानी कि पर डे उसको मेस में 30 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, किसके लिए, फूड के लिए. नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू इन आर इक्वेशन 1. सो पुट y इज इक्वल टू 30, पुट y इक्वल टू 30 in equation 1.
So when we put this in equation 1, we get equation 1 क्या थी, x plus 20y equal to 1000. So we can write कि x plus 2 into y was 30. So we can say that x plus 2 into 30 equal to, yes, it will be 1000, right? So it will be x plus 2 3s are ये 600, 20 into 30 था वो, तो x plus 600 equal to 1000 and the value of x will be, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, yes 1000 minus 600. तो ये बहुत ही easily हम फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी फाइनली, जस्ट अ मिनट, आई एम नॉट गोइंग टू राइट 600 माइनस 600. सो x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 400. ठीक है, तो ये जो वैल्यू है x की, ये कौन सी है, ये फिक्स्ड चार्ज है. सो वी कैन से दैट हैंस द फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू 400 एंड चार्ज डिपेंड ऑन द मेस पर डे, दैट इज ₹30. So here fixed charge will be ₹400 and charge of the mess per day will be ₹30. So let us move to the next question, that is second part of question number 4. So here we have a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from numerator. So here a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. So यहाँ पे अगर fraction की हम बात कर रहे हैं then we have to take numerator as x and denominator as y. So in that case fraction क्या बन जाएगा, x upon y. Now what happened here, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator. So let us take the first situation. So in the first situation we have fraction becomes 1/3, 1 subtracted from the numerator. So we can say that fraction becomes 1/3, okay, when 1 subtracted from the numerator. So डिनोमिनेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. So when once we cross multiply this, we have to multiply this 3 by x minus 1. So once we multiply this 3 by x minus 1, yes, we will get 3 into x minus 1 is equal to, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो y की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 1 के साथ, है ना. तो y इंटू 1 बिल्कुल सिंपल है, एकदम क्लियर है मल्टीप्लिकेशन की. एंड देन वी विल गेट 3 into x, that is 3x, minus 3 into 1, that is 3 equal to y. So from here we can say that we got a first equation here. क्या है फर्स्ट इक्वेशन, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन. अब हम सेकेंड जो कंडीशन है उसको देखते हैं. सेकेंड कंडीशन में हमें कहा गया है कि द न्यूमरेटर एंड इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर इट बिकम्स 1/4, right? Fraction become 1/3 if 1 is subtracted from the numerator. It becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. अब यहाँ पे 8 ऐड करने की बात कही जा रही है डिनोमिनेटर में, और ये है हमारा सेकंड केस. सेकंड केस में न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, बट डिनोमिनेटर में हम 8 ऐड करेंगे और फ्रैक्शन बन जाएगा 1/4. देन सेम थिंग हैपन, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई and after cross multiplication we get 4 into x, that is 4x, and 1 into y plus 8. So यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4x is equal to y plus 8 and the equation will become 4x minus y equal to 8. ठीक है, so ये हो जाएगा. सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. सो लेट अस टेक फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, एंड इन बोथ द इक्वेशन देखिए y जो है ना आपके पास, y के कोफिशिएंट इक्वल हैं, ठीक है, और साइन भी इक्वल है. देन वी विल डू, कुछ भी हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है इसमें, हम डायरेक्टली इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड देन बाय एलिमिनेशन मेथड वी गेट द होल इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ x. देन वी विल सॉल्व इट. ओके, सो हेयर वी कैन सी दैट कि अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल चेंज द साइन हेयर. सबसे पहले साइन चेंज किए, ये कैंसिल हो गया. 3x minus 4x will be minus x and 3 minus 8 will be minus 5. Now this minus sign will be cancelled out from the both the sides and we get x is equal to 5. तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई. ठीक है, नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन
1. So we can say that put x is equal to 5 in equation 1. So अगर हम 1 में वैल्यू पुट करें देन वी विल गेट 3 इंटू वैल्यू ऑफ x इज 5, 3 इंटू 5 minus y equal to 3. So from here we can say that yes, 3 5s are 15 minus y is equal to 3. Okay. So value of y will be, yes, y will be 15 minus 3 and value of y will be 12 from here, and we can say that fraction becomes x by y. फ्रैक्शन क्या था हमारे पास, x अपॉन y, और यहाँ पे x और y की हमें वैल्यू पुट करनी है. सो x इज 5 ओनली एंड y इज 12. सो दिस इज क्वाइट सिंपल टू डू. सो आवर आंसर इज 5 अपॉन 12 इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट ऑफ इट. देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या गिवन. सी व्हाट इज गिवन इन आवर थर्ड पार्ट. सो थर्ड पार्ट में हमें गिवन है कि यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट. यश के 40 मार्क्स आए हैं एक टेस्ट में. ठीक है, 40 मार्क्स आए हैं यश के एक टेस्ट में, और उसने क्या किया, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर द ईच राइट आंसर. उसको 3 मार्क्स मिले हैं राइट आंसर के लिए, और उसको 1 मार्क्स उसने लूज किया है किसके लिए, रॉन्ग आंसर के लिए. तो यहाँ पे इतना तो हमें पता चल रहा है कि टेस्ट में यश ने कुछ क्वेश्चन किए हैं जो कि करेक्ट हैं और कुछ क्वेश्चन किए हैं जो कि इनकरेक्ट हैं. करेक्ट के लिए उसको 3 मार्क्स दिए जाते हैं, बट इनकरेक्ट के लिए उसके हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स लूज कर दिया जाता है, मतलब कि उसका 1 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाता है. ठीक है. सो हमें यहाँ पे 2 वेरिएबल लेने हैं. फर्स्ट वेरिएबल क्या होगा, मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर. मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर इज गिवन, सो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर ही अटेम्प्टेड एंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर ही अटेम्प्टेड. सो वी विल चूज दैट. सो यहाँ पे अगर उसने x करेक्ट आंसर जो है अटेम्प्ट किए हैं जो कि करेक्ट हैं और y हैं इनकरेक्ट, तो यहाँ पे कहा गया कि यश ने 40 मार्क्स स्कोर किए हैं. तो फर्स्ट केस में आप इस चीज़ को ना ऐसे समझिए. देखिए, अगर किसी बच्चे ने 2 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं और उसको 3 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए दिए जाते हैं, तो उसको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 6. अगर किसी बच्चे ने 7 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, ये करेक्ट क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं, तो उसको 21 मार्क्स मिलेंगे. बट अगर किसी बच्चे ने x क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और हर क्वेश्चन के लिए उसको 3 मार्क्स दिए जाते हैं, तो ऑब्वियसली उसको 3x मार्क्स दिए जाएंगे. सिमिलरली अगर हम इनकरेक्ट की बात करें और 1 मार्क्स डिडक्ट किया जा रहा है, तो हम कहेंगे कि 3 क्वेश्चन अगर उसने गलत किए हैं, हर एक के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा, तो उसके टोटल -3 डिडक्ट हो जाएंगे. अगर 5 क्वेश्चन उसने किए हैं इनकरेक्ट, हर एक के लिए -1 डिडक्ट होगा, तो उसके -5 हो जाएंगे. तो इसी तरह से अगर उसने y क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए अगर -1 वो लूज करता है, तो y इंटू -1 उसके कितने हो जाएंगे, -y हो जाएंगे मार्क्स. तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही थी कि कैसे आप मार्क्स को कलेक्ट करेंगे. करेक्ट आंसर के लिए उसको क्योंकि 3 मार्क्स अवॉर्ड किए जा रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 3x, और इनकरेक्ट आंसर के लिए उसको -y दिए जा रहे हैं. यहाँ पे -y इक्वल टू टोटल मार्क्स उसके हैं 40, और ये हमारी बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन. बिल्कुल ठीक इसी तरह से अगर 4 मार्क्स उसको दिए जाएं हर करेक्ट आंसर के लिए, तो उसका 4x आ जाएगा यहाँ पे. बट 2 मार्क्स डिडक्ट किए जाएं इनकरेक्ट के लिए, तो -2y, और टोटल मार्क्स इन दैट केस विल बी, टोटल मार्क्स अवॉर्डेड विल बी 50. सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 इक्वेशन हमें पता चल गई है, फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड लेट वी सॉल्व दीज इक्वेशन नाउ. सो यहाँ पे क्या होगा, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, पूरी इक्वेशन को देखो हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब हर एक टर्म को हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6x. ठीक है, सो वी विल राइट हियर 6x minus 2y. Once we multiply this equation, we get 6x minus 2y equal to 80. पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया. और फर्स्ट जो इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन जो है, उसमें से हम फर्स्ट को माइनस करें तो 4x minus 2y equal to 50, ये हमारी थी
फर्स्ट इक्वेशन। अब क्योंकि हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस माइनस, and this will be cancelled out, so we get minus 2x is equal to minus 80 plus 50 will be minus 30. Okay, so yes, we can say here कि value of x will be minus 30 and divided by minus 2. Minus will be cancelled out from here. Yes, so we have 2 ones are 2 and 2 15s are, so we can say that कि value of x will be 15 only. तो यहाँ पे हमारे पास आ गई x की value. Now we have to find out the value of y. So how can we find out the value of y? Yes, we will take one equation, we will put the value of x here and get the value of y. तो हम एक इक्वेशन इसमें से चूज करेंगे, ठीक है, और उस इक्वेशन में हम x की वैल्यू को 15 पुट करेंगे. सो आई एम टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40. ओके, एंड नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x here. So value of x was 15. So yes, we can say that x into 15 minus y is equal to 40. This implies 15 these are 45. 45 minus y equal to 40. This implies we can say that minus y is equal to 40 minus 45. So we can get minus y equal to minus 5. ओके, तो यहाँ पे हमें क्लियर पता चल रहा है कि जो माइनस जो y की वैल्यू है वो 5 के इक्वल है. तो देन वी कैन से दैट हैंस नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ correct answer, Yash would have scored 50 mark. How many questions were there in the test? हमें ये भी बताना है कितने क्वेश्चन थे वहाँ टेस्ट में. सो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं. Hence number of questions in the test. Okay, सो हमारे करेक्ट जो थे वो कितने थे, 15 थे, और इनकरेक्ट आए हैं 5. तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 20. So we can say that there were 20 questions in the test. Okay, so we have done question number 4, first, second and third part. So in the rest part will be uploaded in the next video. Thank you so much for watching. If you have not subscribed my channel, please subscribe it. Press the notification bell so that you will get all the updates of the channel, and don't forget to like the video. Thank you so much for watching.